Hello students, welcome to the 46th lecture of Physical Pharmaceutics 1 BP 302T. I am Dr. Sushma Verma, Associate Professor in the Department of Pharmaceutics, Pharmacy Institute, NIT Greater Noida. Right, till now we have discussed pH scale, application of buffers, buffer action, buffer capacity, and in this lecture we will be discussing the buffered isotonic solutions, right. So, isotonicity is very important as far as the dosage formulation of various parenterals is concerned. So, we will be focusing on the significance of isotonic solutions, how to measure isotonicity, and for adjusting the isotonicity of solutions what methods are used. So, in this lecture we will be discussing all of these things, right. Isotonic, what do you mean by isotonic? So, if a small quantity of blood is mixed with a solution containing 0.9 grams of NaCl per 100 ml, these cells retain their normal size and the solution has essentially the same salt concentration and hence the osmotic pressure as that of the red blood cells content, right. So, isotonic solutions कौन से होते हैं कि अगर उनको आप जैसे जो आपका ब्लड है, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक पीएच है, राइट, उस जो ब्लड का जो पीएच है सेम पीएच मेंटेन करने के लिए आपको जो सोडियम क्लोराइड की कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, यू रिक्वायर 0.9% सोडियम क्लोराइड, राइट. सो इफ आप जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको सेम टोनिसिटी के सॉल्यूशंस में रखेंगे तो वो जो है बिल्कुल सेम रहते हैं, उनका साइज, उनकी शेप, they maintain it well. So, if two solutions are having the same osmotic pressure, they can be called as isotonic solutions, right. So, if we take the example of blood, right, what we have red blood cells, right. If they are put on isotonic solutions, means solutions of the same isotonicity, they will maintain their shape, right. And we have two more types of solutions. One is hypertonic solution, and another is hypotonic solution, right. So, one is hypertonic solution and another one is hypotonic solution. So, hypertonic solution is one which is having a concentration more than your solution, राइट. अगर आपके पास जैसे आइसोटोनिक सोल्यूशन था 0.9% NaCl का, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन का अगर सोल्यूशन है तो वी कॉल इट एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इससे कम कंसंट्रेशन का, ठीक है, सपोज वी हैव सोल्यूशन ऑफ 1.5% NaCl. So, this is hypertonic solution and we have 0.3% NaCl solution, this is hypotonic solution. So, we want to see the effect of hypertonic and hypotonic solutions on red blood cells. So, what will happen? So, these are red blood cells. If we put hypotonic solution here, hypotonic is the concentration of the solution is less as compared to the physiological fluid of blood, right. So, ये RBCs blood plasma में present है तो हमारे पास वहाँ पर कितना है 0.9% NaCl वाली concentration है वहाँ पर, राइट. तो हमने यहाँ पर 0.3% NaCl solution provide किया, तो उससे क्या होगा, because the concentration that is in the red blood cells is more as compared to the hypotonic solutions. So, what will happen, to balance out the concentration, the water will go from outside to the RBCs, or the RBCs will take up water to maintain the concentration and in turn they will swell up, राइट, ठीक है. तो जब जो RBCs को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में डालते हैं तो वो क्या करेंगे, सेम कंसंट्रेशन दोनों साइड्स में करने के लिए दे विल एब्जॉर्ब वाटर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दे विल स्वेल, एंड आफ्टर स्वेलिंग व्हाट विल हैपन, up to a point they will swell and after that they will burst, right. जब तक वो उसका जो है प्रेशर झेल पाएगी उसकी सेल वॉल तब तक वो करेंगे एंड आफ्टर दैट इट विल रप्चर एंड दिस प्रोसेस इज हीमोलिसिस,
right? And if we put RBCs in hypertonic solution, what will happen then? ठीक है, अगर उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में आपने रख दिया RBCs को, तब क्या होगा? यहाँ पर तो वो जो हाइपोटोनिक में तो उन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया था और वो स्वेल कर गए थे एंड फाइनली दे बर्स्ट, राइट? In hypertonic solution, what will happen? That the water will come out from the RBCs, ठीक है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालने के बाद आरबीसी से क्या होगा? आरबीसी से वाटर निकल के आएगा बाहर एंड दे विल श्रिंक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रीनेशन, राइट? तो आप दोनों ही केसेस में देख रहे हैं कि अगर आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन यूज़ किया या हाइपरटोनिक सोल्यूशन यूज़ किया, दोनों ही केसेस में क्या है, जो आरबीसीज हैं वो अपना नॉर्मल जो शेप है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. आइदर दे आर टेकिंग अप वाटर, गेटिंग स्वेल्ड अप एंड फाइनली दे बर्स्ट कॉजिंग hemolysis, right? They are not able to maintain their shape, and in hypertonic solution water is coming out of the RBCs and they are getting shrinked and finally crenation is taking place, which is the death of the RBCs, right? So, we have seen here that when you put blood in either hypertonic solution or hypotonic solution, the RBCs are not able to maintain their original shape and size, death of the RBCs is taking place. So, if a formulation is hypertonic or hypotonic and it has been given in or it has been injected into the blood, so it can cause the immediate death of the patient, right? So, while formulating formulations for injectables or parenterals, so you should keep in mind that the solution should be isotonic, means it should have same tonicity as that of the blood. If it is not there, then it can cause fatal consequences, right? So, next is the hypotonic solutions. If the red bloods are suspended in a 2% of NaCl solution, the water within the cell passes through the cell membrane in an attempt to dilute the surrounding salt solution. This outward passage of water causes the cell to shrink and become wrinkled or crenated, right? So, if the RBCs are put in a hypertonic solution, so the water will come out of the cell membrane of the RBCs and the cells will shrink and become wrinkled or the crenation will take place. Similarly, if we put the blood or it is the blood is mixed with 0.2% NaCl solution, which is hypotonic solution, or with distilled water, water enters the blood cells causing them to swell and finally burst with the liberation of hemoglobin, right. So, if blood is or RBCs are put in hypotonic solutions or distilled water, what will happen? The cells will absorb water, right, and they will swell and finally burst when they will not be able to withstand the pressure, and finally the liberation of hemoglobin will take place. The salt solution in this instant is said to be hypotonic with respect to the blood cells, and this phenomenon is known as hemolysis. So, this very concepts, these three very simple experiments are very necessary to understand what are isotonic solutions, right. So, isotonic solutions are when two isoosmotic, means having the same osmotic pressure, right. When two isoosmotic solutions contain solutes that cannot cross the biological membrane, right. सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होने से भी आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं होते हैं, प्लीज मार्क इट, राइट. तो आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं कि जिसमें आपने सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का तो लिया सोल्यूशन, बट द सोल्यूशन सोल्यूट इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट. वो अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करके दूसरे चैम्बर में अगर जा सकता है, देन इट इज नॉट टर्म्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन, राइट. आइसोटोनिक सोल्यूशन वो कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होना ही चाहिए ब्लड के साथ साथ, प्लस देयर इज वन मोर कंडीशन दैट इट शुड नॉट क्रॉस द सेमी, द सोल्यूट पार्टिकल शुड नॉट क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द system, right. So, when two isoosmotic solutions contain solutes that
cannot cross the biological membrane, they are described as isotonic with respect to that particular membrane. And tonicity is the concentration of only the solutes that cannot cross the membrane, since these solutes exert an osmotic pressure on that membrane, right. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से हुए कि एक तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है प्लस उनके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को पास नहीं कर सकते हैं, right. So these two points are very very important as far as isotonic solutions are concerned, right. So next is the measurement of tonicity. फर्स्ट तो ये समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है टोनिसिटी की, ठीक है। अगर हम जो है अपनी डोजेज फॉर्म का टोनिसिटी सेम नहीं रखेंगे जिस भी फिजियोलॉजिकल फ्लूइड के लिए उन्हें डिज़ाइन करके रखा है, तो जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना, क्योंकि फाइनली किस पे इफेक्ट हो रहा है, आरबीसीज पे इफेक्ट हो रहा है। जब ब्लड का ही जो है हीमोलिसिस हो रहा है या क्रीनेशन हो रहा है तो जो है पेशेंट उसको विथस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, उसको जो है आपकी दवाई देने के बाद ही उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाएगी वहीं पे, राइट। सो दिस फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द फॉर्मुलेशन ऑफ द पेरेंट्रल इज कंसर्न, ठीक है। बाकी फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बट ब्लड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड की बफर कैपेसिटी जो उस पीएच को जो है रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। तो जब भी आप कोई डोजेज फॉर्म या कोई इंजेक्शन जब ब्लड के अंदर दे रहे हैं तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए कि इट शुड बी आइसोटोनिक, या जब ड्रिप भी चढ़ती है हॉस्पिटल के अंदर ग्लूकोज का लगा दिया जाता है ना, वो जो पेशेंट्स मुंह से खाना नहीं खा सकते हैं तब यू पुट अ ड्रिप टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल आइसोटोनिक होनी चाहिए ब्लड प्लाज्मा के साथ। अगर वो नहीं है तो आपने बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा सुना होगा कि हम हॉस्पिटल में गए थे, ग्लूकोज चढ़ने के बाद हम फूल गए हैं। वो फूल इसलिए गए हैं बिकॉज द स्वेलिंग हैज टेकन प्लेस, द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड दैट वाज गिवन टू द पेशेंट वाज नॉट आइसोटोनिक, इट वाज हाइपोटोनिक। उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन थोड़ा सा प्रोवाइड किया, जो कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की होनी चाहिए थी वो 0.9 नहीं थी, उससे कम थी। तो उसमें क्या हुआ, जो आरबीसीज थे बॉडी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं था कि हीमोलिसिस कॉज करता, कि जो ब्लड सेल्स हैं उनको रप्चरिंग कॉज करता, राइट। तो वो थोड़ा सा रह गया, लेकिन बट देयर वाज अ एरर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो वो नहीं होना, तो उसको कैलकुलेट करने के तरीके क्या है मेजरमेंट के। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, फर्स्ट इज द हीमोलिटिक मेथड। सबसे पहला तो यही एक्सपेरिमेंट जब हमने किया कि उसको द इफेक्ट ऑफ वेरियस सोल्यूशंस ऑफ द ड्रग इज ऑब्जर्व्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जो ड्रग आप यूज करने जा रहे हैं उसका ब्लड सेल्स के ऊपर रिएक्शन देख लीजिए, ब्लड सेल्स को उस ड्रग में सस्पेंड करके देख लीजिए। अगर वो इंटैक्ट रह रहे हैं मीन्स वो जो है ड्रग है आपकी आइसोटोनिक है। अगर उनकी क्रीनेशन हो रही है, हीमोलिसिस हो रहा है, तो इट मीन्स द ब्लड इज नॉट सुटेबल फॉर यूज इन as parenteral, right. Second is the measurement of the slight temperature differences, right. So you must have studied colligative properties in your 12th standard, right. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी, उसमें 4 थी। एक था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी जिसको आपने पढ़ा था। तो जो है हम जो सेकेंड मेथड ऑफ टोनिसिटी है वो इसी को यूज़ कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ दी स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस, राइट। द सेकेंड मेथड इज बेस्ड ऑन अ राइजिंग मेजरमेंट ऑफ द स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन द वेपर प्रेशर ऑफ थर्मली इंसुलेटेड सैंपल्स कंटेन्ड इन अ कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी चेम्बर्स, राइट। तो हम ये क्या मानते हैं कि कोई भी प्योर अगर सॉल्वेंट है उसका एक जो है वेपर प्रेशर होगा, राइट। अगर उसके अंदर आपने कोई सल्यूट ऐड कर दिया सो इट विल लीड टू इट्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट, ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं आइसोटोनिक या टोनिसिटी मेजरमेंट के लिए। तो हमको ये पता है ब्लड प्लाज्मा ले लिया, उसका जो है उसको हमने उसका वेपर प्रेशर ले लिया और
जो आपकी ड्रग है उसका ले लिया वेपर प्रेशर, उसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि देर इज़ अ डिफरेंस. इफ़ देर इज़ अ डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू, इट मीन्स आपका जो है वो टोनिसिटी सेम नहीं है. सो दैट हैज़ टू बी मेंटेन सो एज टू ऑब्टेन अ फॉर्मुलेशन दैट कैन बी वेरी इजीली गिवन टू द पेशेंट. Right. So, these are the two methods for the measurement of tonicity, the first being very popular. Right. So, अब जब हमें पता लग गया कि टोनिसिटी कितनी थी, है ना, कि सेम नहीं है, तो उसको एडजस्ट करना है ना, क्योंकि हमको ऐसी फॉर्मुलेशन बनानी है दैट इज़ सूटेबल फॉर द पेशेंट. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. ड्रग की अपनी टोनिसिटी सेम नहीं है ब्लड प्लाज्मा के लिए, तो वी विल यूज सम मेथड्स to adjust the tonicity and pH of the formulation. So, these methods are divided into two class. ठीक है, तो जो methods हैं tonicity adjustment के, they are divided into two classes. So, class 1 methods is, in class 1 methods sodium chloride or some other substance is added to the solution of the drug to lower the freezing point of the solution to minus 0.52 degree centigrade and thus make it isotonic with body fluids. Under this class are included the cryoscopic method and the sodium chloride equivalent method. ठीक है, तो क्लास 1 मेथड्स में हम क्या करते हैं कि जो है आपका सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं. जो ड्रग थी उसकी टोनिसिटी ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट नहीं है. ठीक है, हमको उसको बनाना है, तो उसके लिए हम सेकेंड सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं और वो सेकेंड सब्सटेंस क्या है, सोडियम क्लोराइड है. तो हम सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं उस ड्रग के साथ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ह्यूमन बॉडी में आराम से पाया जाता है. सो इट इज़ वन ऑफ द एक्सीपिएंट टू दैट फॉर्मुलेशन. उसको हम ऐड करते हैं, इस तरह से ऐड करेंगे कि उन ड्रग का और सोडियम क्लोराइड का दोनों का मिलके जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ जाए, माइनस 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, जो कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो ब्लड प्लाज्मा का फ्रीजिंग पॉइंट है. ठीक है, ताकि दोनों जो चीज़ें हैं वो आइसोटोनिक हो जाएं. आपकी ब्लड प्लाज्मा के बराबर फ्रीजिंग पॉइंट किसका आ जाए, जो ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, प्लस क्योंकि उसका नहीं था तो उसमें एडजस्टिंग सब्सटेंस आपने ऐड किया, और वो एडजस्टिंग सब्सटेंस क्या है, सोडियम क्लोराइड है. तो जो ये क्रायोस्कोपिक मेथड फॉर टोनिसिटी एडजस्टमेंट है और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है, दीज बोथ मेथड्स इंक्लूड द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर टोनिसिटी एडजस्टमेंट. ठीक है, इन दोनों, और ये क्लास 1 मेथड्स हैं, इन दोनों ही मेथड्स में, क्रायोस्कोपिक मेथड में और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में, हम दोनों में क्या ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, ताकि ब्लड प्लाज्मा की टोनिसिटी के बराबर आपकी डोजेज फॉर्म की टोनिसिटी हो, सो दैट दी RBCs कैन बी वेल इंटैक्ट, है ना, देर इज नो हार्म टू दी RBCs. राइट, एम आई क्लियर? सो नेक्स्ट आर दी क्लास 2 मेथड्स. ठीक है, क्लास 2 मेथड्स में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे थे. इन क्लास 2 मेथड्स वाटर इज एडेड टू द ड्रग इन अ सफिशिएंट अमाउंट टू फॉर्म एन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्रग के साथ वाटर ऐड कर रहे हैं ताकि उसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन पाए. द प्रेपरेशन इज देन ब्रॉट टू इट्स फाइनल वॉल्यूम विद एन आइसोटोनिक और अ बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो आइसोटोनिक और बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है बनाने के लिए फिर पहले हमने ड्रग का आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाया, फिर उसके अंदर फाइनल वॉल्यूम बनाने के लिए आइसोटोनिक कोई सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं या बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं. और इसमें कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं, वाइट विंसेंट मेथड एंड स्प्रॉल्स मेथड. राइट, वी हैव 2 मेथड्स फॉर दिस क्लास ऑल्सो. इसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रग में वाटर ऐड कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे थे, एडजस्टिंग सब्सटेंस ऐड कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड, टू मेंटेन द टोनिसिटी. राइट, सो फर्स्ट इज द क्रायोस्कोपिक मेथड एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन करूं बिकॉज गोइंग टू द पीपीटी, बिफोर गोइंग टू द पीपीटी. इसमें क्या है, हमें ये पता है हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, दिस इज माइनस 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, वाटर का हमको पता है कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो कोई भी चीज़ ऐड करने से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है. ठीक है, ये आई थिंक यू हैव दिस मच ऑफ नॉलेज
right, because you must have studied physical chemistry in your 12th standard and that too with solutions. तो उसका बेसिक को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. तो आपको ये पता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स एडेड हैं, है ना, तो उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली नहीं जा रहे, और उसकी वजह से कुछ सल्यूट्स की वजह से हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -0.052 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. अब जो हम ड्रग दे रहे हैं किसी भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, किसी भी कॉज के लिए, तो उसका अगर जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो इतना ही है, -0.052 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत अच्छा है. ठीक है, तब तो किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो ये क्रायोस्कोपिक मेथड है, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बॉडी के अंदर मिलता है ना. तो ये ऐसा एक्सीपिएंट है जिसको बॉडी, हम नमक खाने में खाते हैं तो बहुत आराम से जो है हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है नमक को. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं इसको बराबर करने के लिए, लेकिन ड्रग का अपना कोई ना कोई तो होगा ही, है ना, क्योंकि ड्रग ऐड कर रहे हैं, उससे पानी के अंदर उस ड्रग को ऐड करेंगे तो कुछ तो उसका डिप्रेशन आएगा ही, है ना. तो हम क्या करते हैं, 1% ड्रग मींस 100 ml के अंदर अगर 1% ड्रग डिसॉल्व करते हैं तो उससे कितना डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी. ठीक है, तो यहाँ पर पे हम उसको लेंगे ड्रग के लिए, 1% से कितना होगा, अगर उतनी क्वांटिटी उसकी डोज है, अगर डोज ज़्यादा है 1% से तो हम उतने ही मॉलिक्यूल से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वो ड्रग जिसका कि अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है. ठीक है, उसका 1% की वैल्यू डी है, और अगर 1% से ज़्यादा उसकी डोज है तो उसी को उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्स विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ड्रग्स नीडेड, है ना, तो डोज के हिसाब से एक्स वैल्यू आ जाएगी. प्लस अभी क्या है, ये जो है आइसोटोनिक नहीं है हमारी ब्लड प्लाज्मा के साथ, इसके साथ नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे. तो बी क्वांटिटी क्या हुई, बी क्वांटिटी हुई कि कितना सोडियम क्लोराइड हमको ऐड करना है जिससे कि वो जो है सोल्यूशन आइसोटोनिक बन जाए ब्लड प्लाज्मा के बराबर. ठीक है, तो -0.052 हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ये ड्रग की हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी, कितना बनाएगी वो, है ना, और फिर हम सोडियम क्लोराइड की इसमें से माइनस करके बी की क्वांटिटी निकाल सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड दिस calculation, right. So we'll take it in this derivation, how it is written in derivation. So the depression in freezing point of solution of weak as well as strong electrolytes may be given by the equation delta Tf is equal to Kf into C, where delta Tf is the depression in freezing point and Kf is the molar depression constant and C is the molar concentration. ठीक है, तो depression in freezing point is equal to Kf into C, but the actual freezing point depression is always greater than the value obtained. ठीक है, तो जो हमने इस कैलकुलेशन से जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो हमेशा ज़्यादा आती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आइडियल एंड रियल सोल्यूशन, राइट. सो दिस इज ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टू रियल सोल्यूशंस, उसकी वजह से जो है डिफरेंस आता है, और उस को करेक्ट करने के लिए वी इंट्रोड्यूस अ फैक्टर नोन एज आई and it is known as Van't Hoff factor, which represents the number of times greater that the colligative effect is for a real solution than for an ideal solution. The equation thus becomes delta Tf is equal to I Kf into C, right. So substituting I Kf with a new factor L, we get delta Tf is equal to Lc, right. तो ये जो वैल्यू है इसको हमने L से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, सो वी गेट डेल्टा Tf इज इक्वल टू Lc और L इज इक्वल टू डेल्टा Tf अपॉन C, right. These L values can be obtained from the value of freezing point depression of solutions of representative compounds of a given ionic type or at a concentration C, and that is isotonic with body fluids. This specific value of L is represented as L iso, है ना. तो उस particular adjusting substance की value हम L iso
लिख लेते हैं. It is defined as the specific LU of L which is equal to IKF at a concentration of drug that is isotonic with body fluids. The L iso values for a 0.9% sodium chloride solution whose freezing point depression is 0.052 degree centigrade is therefore isotonic with body fluids. ठीक है. तो जो है हमारी L iso वैल्यू 0.9% सोडियम क्लोराइड की फ्रीजिंग पॉइंट के साथ आएगी, तो आएगी L iso इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन C इज इक्वल टू 0.052 अपॉन 0.154 is equal to 3.4, where 0.154 represents the molar concentration of 0.9% sodium chloride solution, right. तो हम उसको जो है सोडियम क्लोराइड से एडजस्ट कर लेंगे. Body fluids such as blood plasma and lacrimal secretion have a freezing point of 0.52 degree centigrade by virtue of the different solutes present in them. Hence, all solutions which freeze at 0.52 degree centigrade will be isotonic with these fluids, right. Depression in freezing point being an additive property, the following formula is used for the calculation of the quantity of a substance required to make solution isotonic with physiologic fluids, right. So, percent weight by volume of adjusting substance कितना होगा is equal to 0.52. ये किसका है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है किसका? प्लाज्मा का, ब्लड प्लाज्मा का, माइनस ए कौन है? जो ड्रग आप यूज कर रहे हैं, वेयर ए रिप्रेजेंट्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू द अनएडजस्टेड सोल्यूशन और सब्सटेंस, मीन्स जो ड्रग आप यूज कर रहे हो, ठीक है. बी कौन है? सोडियम क्लोराइड, जो कि आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं. बी रिप्रेजेंट्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस. एडजस्टिंग सब्सटेंस कौन है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड. तो हम इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की कितनी क्वांटिटी हमको लेनी चाहिए कि जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो आइसोटोनिक बन जाए एज द ब्लड प्लाज्मा, आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा, राइट. So, second method is sodium chloride equivalent method. The sodium chloride equivalent or tonic equivalent of a drug is the amount of sodium chloride that is equivalent to 1 gram of the drug osmotically. The sodium chloride equivalents can be easily found in the literature. Alternatively, the E values can be calculated from L iso values using the following equation, right. तो आप जो है L iso वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज E इज इक्वल टू 17 L iso अपॉन M, वेयर M इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग. And preparation of isotonic solutions using the sodium chloride equivalents E simply involve multiplying the quantity of each drug in the preparation by its sodium chloride equivalent and subtracting these values from the concentration of sodium chloride that is isotonic with body fluids, that is 0.9 grams per ml. This quantity of sodium chloride required to render 100 ml solution containing x grams of drug isotonic is, तो टोटल हमारे पास 0.9 है माइनस x ड्रग का है, राइट. x E इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास सोडियम क्लोराइड कितना ऐड करना है वो क्वांटिटी आ जाएगी, right. So, these are the methods which are using sodium chloride to adjust the tonicity. Next are the class 2 methods. This requires the addition of water, right, to the drug. So, this method involves the addition of a sufficient quantity of water to a drug in order to prepare an isotonic solution. An isotonic or a buffered isotonic solution is then added to the drug solution to give the final volume. The volume of water required for a particular quantity of drug to prepare an isotonic solution can be calculated, right. The formula used is V is equal to W into E into 111.1, right. So, where V is the volume in ml of the isotonic solution, right. तो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज़ करना है उसका वॉल्यूम कितना V, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग W ग्राम्स ऑफ द ड्रग इन वाटर, ठीक है. W इज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट यू आर यूजिंग
E is the sodium chloride equivalent of the drug, ठीक है, जो हमने previously calculate किया था, and 111.1 is a constant representing the volume in ml of isotonic solution obtained by dissolving 1 gram of sodium chloride in water, right. And a further modification of this White-Vincent method was the Sproul's method. In this what happens, it uses tables listing the volume V of isotonic solutions that can be prepared by mixing 0.3 grams of a drug in water, right. तो ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है वाइट विंसेंट मेथड का, इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है कि 0.3 ग्राम ऑफ अ ड्रग इन वाटर को मिक्स करके क्या क्वांटिटीज़ आपकी मिलती। तो दीज फॉर आर दी मेथड्स टू एडजस्ट द टोनिसिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन दैट यू आर formulating for the different physiological fluids. In this was the class 2 methods. First class 1 method was the cryoscopic method and the sodium chloride equivalent method, and in class 2 was the White-Vincent method and the Sproul method. So, this completes our 5th chapter, and this reference is the same for this also, right. So, this completes our chapter. Thank you so much.